speaks of there shall be a president. इतनी बात होती है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए. Then 53 में हम पढ़ रहे हैं कि it is the council of minister. हमने यहाँ पे अच्छे से समझा था that when I talk of executive, the three organs, the legislature, the executive and the judiciary, what is it? What is the actual members or who is it in the entire functioning that you call executive? कौन है वो जो एग्जीक्यूटिव का काम परफॉर्म करता है? आफ्टर ऑल वो है कौन? जैसे आप जुडिशरी बोलते हो तो समझ आता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात हो रही है ना? ऐसे ही लेजिस्लेचर बोलते हो तो समझ आता है कि पार्लियामेंट की बात हो रही है. यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वन लोकसभा, द सेकंड राज्यसभा. Similarly, when I speak of executive, what do you mean by that? So it is the council of minister, and when I speak of council of minister, it means prime minister is included in it. Prime minister भी COM का ही part होते हैं. It's just that he is the head of COM. अब जैसे क्लास में जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो मॉनिटर होता तो वो क्लास का पार्टी है ना. इट्स जस्ट दैट ही विल रिप्रेजेंट द एंटायर पर्टिकुलर सेक्शन, राइट? सो इट इज द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. जो भी एक्शन हमको लेना है वो किसमें वेस्टेड है? इट इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट. नाउ हियर डू अंडरस्टैंड, वेस्टेड इन प्रेसिडेंट का मतलब है एनी डिसीजन. Yes, Ahmed, yes. Because legislature is law making process, and I have also told you that in the last class that he is an integral part of the parliament, though he is not a member of parliament, but he is a part of parliament because legislature का मतलब है क्या? law making. और law कब तक complete नहीं होता? जब तक उसको president का assent नहीं मिलता. जब तक president उसको sign नहीं करेंगे, it will remain a bill, it will not become an act. So president के बिना law making complete नहीं हो सकती है. Therefore president is a part of it. Okay, Ahmed? It's just that president is not a member of parliament. ना वो लोकसभा का member होते हैं ना राज्यसभा के. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है that parliament can function without him, because any work, any decision, any bill, any amendment, any proposal, resolution, whatever, जो भी पार्लियामेंट काम करना चाहती है वो दोनों हाउसेस इंडिपेंडेंटली काम तो करते हैं, बट फाइनली वो उसको सक्सेस बनाने के लिए, उसको फाइनल शेप देने के लिए, इट इज whose signature that you require, that is the president. All right? Ahmed, yes or no? Okay. So all the executive powers of the Union of India are vested in president. Okay. We have done this, that he is the first citizen, highest constitutional functionary, executive head, right? We have done this. Now, the 42nd amendment, okay, the 42nd amendment made it obligatory. We have not done this, right? We have covered till here. Okay. Yes, I remember. So, अब हम बात कर रहे हैं कि सारे जो डिसीजंस हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है ना? अंडर द, it is the decisions that are taken by or signed by president, it is done on the aid and advice of the COM, है ना? कि जो कुछ भी है वो बताएगा तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव की प्रेसिडेंट साहब इस पे साइन करिए, है ना? हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, सो वी नीड योर असेंट. अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो पावर है वो क्या है उसको समझना है. अब देखिए,
अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस या प्रेसिडेंट का रोल सच में पावरफुल है, तो प्रेसिडेंट को ऑफ कोर्स इतना तो से है ही कि जब उनके पास उनके सिग्नेचर के लिए कुछ आया है, and if he is the executive head, then he must have the freedom and he must have the free hand to say no, that the suggestions, the propositions that you have brought, I'm not satisfied with it and I cannot give my assent to it, right? However, such is not the case. And पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्या लिखा था, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम। अब ये जो सीओएम की एड एंड एडवाइस है, वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग भी है या नहीं? Is it binding on the president? Whatever COM says, the president has to, is bound by it and he has to sign it. So there was a confusion regarding the same. Therefore, the 42nd Amendment Act, now you must remember, 42nd Amendment is mini constitution, which was done during the Indira Gandhi government, and a lot of changes were made in the constitution, and the changes were done in such a manner that it brought about many changes in the basic structure of the constitution, making the position of executive stronger, right? तो एग्जीक्यूटिव को आप अपर हैंड देना चाह रहे थे, so that the PM can work more, PM can have a free hand and take decisions authoritatively. So therefore, the 42nd Amendment Act is called as the mini constitution, where it tried to change or brought about many constitutional amendments and changes. तो 42nd में जब तक ये कंफ्यूजन था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस और नॉट, तो 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बोला कि नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, क्लियरली लिख देते हैं, दैट द एडवाइस दैट द सीओएम गिव्स, द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट इट। सो बाइंडिंग कर दिया एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर। द एडवाइस वाज नाउ, वही डिस्कस कर रहे हैं तान्या कि नेसेसरी है या नहीं है, वही बता रहे हैं कि कब तक कौन सी अमेंडमेंट तक नेसेसरी था और कौन सी अमेंडमेंट के बाद नेसेसरी नहीं रहा। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट? सो 42nd अमेंडमेंट में ये हुआ, एंड we have written in the constitution then that it is obligatory. तो अब क्या हो गया, अब तो सीएम को जो डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए बना दिया बाइंडिंग, राइट? सो इस पोजीशन में द पोजीशन एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज अ पावरफुल वन, और इज इट जस्ट एक्टिंग लाइक अ रबर स्टैम्प? Yes, guys. Please respond when you are asked to. In this case, when the president can not act according to his will, but he is bound by the advice of COM, in such a case, is the office of president being powerful, or is the intent is to make it a rubber stamp? Rubber stamp. Yes, to make it a rubber stamp, right? तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का इंटेंशन नहीं था, and this cannot be a part of basic structure. We can clearly see that it is destroying and it is against the constitutional values, right? जिसको आप एग्जीक्यूटिव हेड बोल रहे हो उसको ना करने तक की कोई परमिशन नहीं है, है ना? ऐसा हुआ। However, this was undone. इसको चेंज किया गया बाद में by the 44th Amendment Act. अब वो चेंज क्या किया, अभी आगे बढ़ते हैं। Let us move to the next point first. So the president is not a member of parliament, but he is an integral part of the parliament. Done. So no bill can become an act without the assent of president. We know it. Also, he has the power. यहाँ पे full stop आना चाहिए, and it is a new point.
he has the power to dissolve the Lok Sabha. ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व अगर हमें करना है, who can do that? Who has the power? It is the president. Okay, no one else. अब यहाँ पर दो वर्ड देखिए, वन इज समन, द अदर इज प्रोरोग. समन इज टू कॉल, है ना. समन का मतलब होता है स्टार्ट करना, और प्रोरोग का मतलब होता है कैंसिल करना, खत्म करना, एंड करना. तो पार्लियामेंट के जो भी सेशन होते हैं, मॉनसून, विंटर, बजट सेशन, सेशंस की जब शुरुआत होती है तो फर्स्ट सेशन को कौन समन करता है सबसे पहले? इट इज द प्रेसिडेंट. ही विल डू इट. And who prorogues it? Again, it is the president who prorogues or ends the session. Okay. And he also has the power to address the houses of parliament jointly or separately. ठीक है, दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस को वो चाहे तो एक जॉइंट मीटिंग भी बुला सकते हैं प्रेसिडेंट. जॉइंट मीटिंग जनरली कब बुलाई जाती है? सपोज करो देयर इज अ बिल विच हैज बीन पास्ड इन लोकसभा पर राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है. ठीक है, मतलब डेडलॉक हो गया है, एक हाउस से पास हुआ है, दूसरा हाउस उसको पास ही नहीं कर रहा है, कभी रिकमेंडेशन बता रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उस पर एक्ट नहीं कर रहा है. तो इस केस में जब दोनों हाउसेस को बिठा कर उनके बीच में हमको सुलह करानी होती है या फिर दोनों हाउसेस के व्यू पॉइंट्स को सुनना होता है, then at that particular time in such a situation we can call the two houses jointly, and who has the power to do so? It is the president. He can address that, right? Then he can send messages to the parliament. He can promulgate an ordinance when one or both houses of parliament are not in session. Then he can send financial or ordinary bills back for reconsideration to the parliament. ठीक है, अब पढ़ते हैं executive powers. ठीक है, because we are reading about the office of president. अब पहले समझते हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हो, जिसको आप एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया बोल रहे हो, है ना, मतलब ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, है ना. सो देखते हैं उनको क्या क्या पावर्स मिली है. ठीक है, व्हाट ऑल पावर्स डज ही हैव, दिस ऑफिस हैज. ऑल्सो you can read the same chapter from Lakshmikant also. वहां पर भी सारी powers को अलग अलग heads में बताया हुआ है. So once you read here, you can also go through the text from there. तो clearly समझ आ जाएगा. Let us start. So executive powers में हम बात कर रहे हैं. Supreme Court in Ram Javaya case define the executive powers. ठीक है, ये कंफ्यूजन भी कई बार रहता है कि मैम लेजिस्लेटिव पावर्स तो समझ आ गया कि लॉ को बनाने की, है ना. जुडिशरी और जुडिशियल फंक्शंस आर अगेन व्हाट, taking it from a neutral viewpoint and seeing any particular act and law whether it is constitutional or not. तो जुडिशियल फंक्शंस का डोमेन भी समझ आता है, पर एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियरली डिफाइन किया कि जो भी फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, अगर उसमें से लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस को हटा दिया जाए तो जो भी बचा Mayank, in the constitution the word which is used is state and not nation, because by now you must know the difference between the state and nation. We have started polity with the same concept, that what is the difference between state and nation. कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए क्या वर्ड, कैसे यूनियन, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, हर जगह स्टेट की बात की है ना, नेशन की बात. नेशन इसलिए नहीं बोला क्योंकि स्टेट और नेशन में डिफरेंस होता है. ये तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस होता है. नेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. नेशनल फीलिंग्स को बहुत ग्राउंड्स पे एक्सप्रेस कर सकते हो. So Supreme Court said that all the functions that remain after
we take away या माइनस कर दो all of the functions minus legislative minus judicial, जो भी बचा वो सारे functions क्या हो गए हमारे executive powers या executive functions. ठीक, so the executive powers include क्या क्या आता है इसमें, the administration, the implementation of law, determination of government policies, initiation of legislation. मतलब अगर हमें कोई भी लॉ बनाना है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोई भी लॉ अगर हमें बनाना है उसकी शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा से नहीं होती है. लोकसभा राज्यसभा तो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया. इनिशिएट होता है सीओएम में. कोई मिनिस्टर, जो भी सीओएम में मिनिस्टर्स हैं आपके, वो प्रपोज करते हैं कि हम ऐसा बिल, yes cabinet and the COM they will come up, they will initiate, वो सजेस्ट करते हैं. फिर उस सजेशन को लाइफ लाने, उसमें लाइफ डालने के लिए या उसको रियलाइज करने के लिए, उसको ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है कि उसको एक लॉ बनाकर लाया जाए. तो पहले इनिशिएट तो वो एग्जीक्यूटिव में ही होता है, उसके बाद वो लेजिस्लेचर में आता है. ठीक है. देन यू हैव मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, promotion of social and economic welfare, direction of foreign policy and carrying out the general administration of state. यहाँ पर और भी लिखी हैं, you can read them, the list may go on and on because government के functions को आप बहुत limited way में तो नहीं बता सकते हो, but this is to tell you what is the meaning. Okay, कि किसी भी state function को पढ़कर आपको समझ आना चाहिए कि ये कौन से function की बात हो रही है. Is it the executive or the legislature or the judicial one? All right. Next is Article 58 that talks about the qualifications of the president. ठीक है. क्या क्या qualifications हमें चाहिए for someone to become a president? So simple है, there are 4. First is the person must be 35 years of age. In the case of Lok Sabha it is 25 years. कई जब लोकसभा पढ़ोगे वो वहां भी बताएंगे, ये बस मैं इसलिए बता रही हूँ, रिवाइज होता रहेगा आपको. लोकसभा के केस में the age criteria is 25. In case of Rajya Sabha it's 30 and in case of president it's 35. Okay. Then he must be a citizen of India. ठीक है, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए. He must be qualified to be member of Lok Sabha. Yes. गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैम आपने जो भी एज क्राइटेरिया समझाया था कि लोकसभा के केस में 25 एंड राज्यसभा के केस में 35, तो मैम ये प्रेसिडेंट चाहे लोकसभा में से हो चाहे राज्यसभा में से हो, मतलब ये यही बताना चाह रहे हैं ना कि अगर वो मेंबर हो लोकसभा का तो 25 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए क्वालिफिकेशन एक प्रेसिडेंट के लिए, राइट? रिपीट द लास्ट लाइन. अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो मैम उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ प्रेसिडेंट वो 25 होनी चाहिए. नहीं, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो पहली बात वो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते. हमने पढ़ा है ना, प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं. हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था. That yes मैम, याद आ गया. Second point, the president is not a member of parliament. He is not an MP. He doesn't represent Lok Sabha. He doesn't represent Rajya Sabha. ठीक है.